अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम दत्तात्रेयाय विश्वगुरु परब्रह्म स्वरूपाय श्री गुरुदेवाय अवधूताय नमो नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय 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 नमः। दीवाना में दीवाना सद्गुरु का मैं दीवाना। दीवाना मैं दीवाना सद्गुरु का मैं दीवाना। दीवाना मैं दीवाना सद्गुरु का मैं दीवाना। परवाना में परवाना में परवाना सद्गुरु पे मैं मित जाना। दीवाना में दीवाना। ओम नमो भगवते राम कृष्ण वासुदेवाय। 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 कृष्ण वासुदेवाय। राम 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 कृष्ण वासुदेवाय। राम 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 कृष्ण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते राम कृष्ण वासुदेवाय। ओम नमो भगवते राम कृष्ण वासुदेवाय। कृष्ण वासुदेवाय। कृष्ण वासुदेवाय। राम 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 कृष्ण वासुदेवाय। कृष्ण वासुदेवाय। कृष्ण वासुदेवाय। अवधूत शिव जी है बोला गजानन मस्त चिलम वाला।
चिलम वाला है बांसुरी वाला, चिलम वाला है बांसुरी वाला। अवधूत शिव जी है बोला, गजानन मस्त चिलम वाला। अवधूत शिव जी है बोला, गजानन मस्त चिलम वाला। चिलम वाला है बांसुरी वाला, चिलम वाला है बांसुरी वाला। अवधूत शिव जी है बोला, गजानन मस्त चिलम वाला। अवधूत शिव जी है बोला, गजानन मस्त चिलम वाला। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। આજે સાતમ પર આઠમ છે અને આજે રાત્રે 11:48 સુધી જ સાતમ છે. રાત્રે 11:48 સુધી જ સાતમ છે. સેકન્ડો ગણીએ તો 23:49 સુધી સાતમ છે, એટલે કે 11:49 સુધી સાતમ છે. અને આવતીકાલે શનિવારે 9:34 એટલે 21:34 PM સુધી જ આથમ છે. સાતમ આજે રાત્રે 11:48 સુધી છે, 49 સુધી. અને પછી આથમની શરૂઆત થાય છે આજે રાત્રે 11:49 તે આવતીકાલે રાત્રે 9:34 સુધી, એટલે કે 21:34. ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ થયો હતો ત્યારે રોહિણી નક્ષત્ર પણ હતું અને આથમ હતી. નક્ષત્રનો સમય થતો નથી આજે, બરાબર, પણ આથમ ક્યારે છે? આજે રાત્રે 11:49 એટલે જ્યારે 12 વાગે છે, આપણે 12 વાગે ભગવાન કૃષ્ણનો જન્મ કરીએ છીએ ત્યારે આથમ હોવી જરૂરી છે. તો એ આથમ ક્યારે છે? આજે છે. સમજાય છે? કારણ કે રાત્રે 11:49 સુધી સાતમ છે. એટલે 12 વાગ્યા પછીનો જે જન્મ છે, આપણે 12 થી 12:40 વચ્ચે જનરલી નિશ્ચિતકાળ ને બધું ગણતરી કરીને અમારા ઋષિ પરંપરામાં રાત્રે 12 વાગ્યા પછી એટલે લગભગ 12:40, 12:35-40 આજુબાજુ કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મોત્સવ ઉજવવામાં આવે છે, બરાબર. જન્માષ્ટમી ઉજવવામાં આવે છે. તો એ જન્માષ્ટમી આજે જ કરી શકાય. એટલે અમારા આશ્રમ પર પણ આજે જ જન્માષ્ટમી કરવામાં આવશે. રાત્રે 11:49 સુધી સાતમ છે ને 12ની ઘડી જ્યારે સ્પર્શ કરે છે ત્યારે આથમ હોવાથી ને આવતીકાલે રાત્રે 12ની ઘડીએ આથમની પણ નોમ સ્પર્શ કરે છે, બરાબર. કારણ કે આવતીકાલે 9:34 સુધી જ આથમ છે. એટલે આવતીકાલે રાત્રે 12 વાગે નોમ હોય છે, બરાબર. આપણે કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્મ ક્યારે કરવાનો છે? જ્યારે રાત્રે 12 વાગે આપણે જન્મ કરીએ તે વખતે તિથિ આથમ હોવી જરૂરી છે. એટલે જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ આજે કરવામાં આવશે. કે જે લોકો ઘરે પણ કરે છે, ભલે તમારા મંદિરોમાં જ્યારે થતું હોય છે, પણ ટેકનિકલી મેં તમને કીધું કે 11:49 સુધી જ આજે રાત્રે સાતમ છે. અને 12ની ઘડી જ્યારે સ્પર્શ કરે છે ઘડિયાળમાં તે વખતે આથમ છે. અને ભગવાનનો જન્મ 12 થી 12:40 વચ્ચે, 12:35-12:40 વચ્ચે નિશ્ચિત કાળમાં ઉજવવામાં આવે છે જન્માષ્ટમી, બરાબર. તો એથી અમે સૌ આજે રાત્રે જ જન્માષ્ટમી ઉજવવાના છે. બાકી આપણે આપણી મોજ પ્રમાણે કરવું. આ સત્સંગની ચેનલ સાથે જોડાયેલા હોવાથી આટલી માહિતી આપવી એ મારી ધાર્મિક અને નૈતિક ફરજ બને છે.
કે આવતીકાલે રાત્રે તમે 12 વાગે જો કૃષ્ણ જન્મ કરશો તો તે વખતે નોમ હશે, કારણ કે આથમ આવતીકાલે રાત્રે 9:34 પૂરી થઈ જાય છે. સમજાય છે? શ્રી ગુરુદેવ દત્ત, શ્રી ગુરુદેવ દત્ત, શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. એટલે આજે 7મ પર આથમ છે. શ્રી ગુરુદેવ દત્ત, શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. એક સખાએ ગઈકાલે બહુ સરસ પ્રશ્ન કર્યો આપણો સંવાદ સાંભળીને કે આધ્યાત્મિક કવચ કેવી રીતે કરાય. आध्यात्मिक कवच अपने और अपने फैमिली के लिए प्राप्त करने के लिए आपको शुद्ध सात्विक जीवन जीना पड़ेगा. आपको अपने चरित्र को संभालना पड़ेगा. सोच असोच का पालन करना पड़ेगा. ठीक है ना? हम लोग, मैं मेरी बात करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है ना? प्रातःकाल उठ के स्नान करते हैं, वो तो सभी करते हैं, लेकिन देवस्थान में पूजा करने जाते हैं तब भी स्नान करके जाते हैं और देवस्थान के वस्त्र अलग होते हैं, मतलब पूजा के वस्त्र अलग होते हैं. ठीक है? सोच असोच जाते हैं, मतलब पेशाब पानी ये सब करने, अपनी दैनिक जो क्रिया होती है वो करने जब भी जाते हैं हम लोग, उसके बाद स्नान करते हैं. हाँ, स्नान किए बिना हमारे यहाँ रसोई भी नहीं होती. समझ गए आप? हाँ, किसी का जूठा खाते नहीं, किसी को जूठा खाने देते नहीं. तो स्नान करने के बाद ही हमारी गृह लक्ष्मी किचन में प्रवेश करती है. हाँ, अभी जो आपके साथ ये सत्संग होने के बाद मेरा चाय नाश्ता का टाइम होगा 8 बजे सराउंडिंग, तो उस टाइम भी मेरी जो हमारे गृह लक्ष्मी है, बहू है, वो स्नान करने के बाद ही इवन चाय नाश्ता हमको कराएंगे. ठीक है? तो सोच असोच का पालन करना पड़ता है. टॉयलेट जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो उसके बाद स्नान करना ज़रूरी है. और ट्रैवलिंग में है, पॉसिबल नहीं है तो जल छिटके भी सूट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो सब मतलब डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद भी हम स्नान तो करते ही हैं. जा रहे हैं कहीं भी, 24 घंटे का सफ़र है, 36 घंटे का, तो डेस्टिनेशन में बीच में अब सोच असोच का भी आ गया, तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद भी हम लोग स्नान करते हैं और फिर नए वस्त्र धारण करते हैं. समझ गए? तो शुद्ध सात्विक जीवन, उसके साथ ये सोच असोच का पालन करना पड़ता है. जन्म मरण का जो सूतक होता है उसका भी पालन करना पड़ता है. हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि 7 पीढ़ी तक का सूतक लगता है. मैं, मेरे भाई, ठीक है, मेरे अंकल, ठीक है नहीं, उसके भाई, तो 7 पीढ़ी, मेरे ग्रैंडफादर, उसके फादर, उनके ब्रदर्स, ठीक है ना, तो ऐसे 7 पीढ़ी का भी सूतक लगता है. तो किसी का जन्म होता है या किसी का मरण होता है, तो कम से कम हम लोग 40 दिन का सूतक का नियम से जीते हैं. अपने घर में ही है, मतलब मेरे घर में है, मेरे भाई के यहाँ है, ठीक है, मेरे अंकल के यहाँ है, तो 40 दिन तक. अभी मेरी आंटी परमात्मा को प्यारे हो गए, ठीक है ना. हाँ, तो इसका सूतक हम लोग 40 दिन तक, तो हमने देवस्थान को खोला भी नहीं है. 40 दिन तक देवस्थान को छुआ भी नहीं है. 40 दिन के बाद ये नई माला 100 नई माला ग्रहण करने के बाद हम लोग देवस्थान को भी छूते हैं. ठीक है? नई माला का ग्रहण. और हमारे गुरु महाराज के नियम तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो 40 दिन से ज़्यादा दिन निकाल लेते थे, उसके बाद माना. घर में पिताजी का देहांत हो गया तो 1 साल तक मैंने कोई पूजा नहीं की. 1 साल तक मेरे पिता के देहांत होने के बाद
1 साल तक मैं कोई मंदिर नहीं गया, दुनिया के किसी मंदिर में नहीं गया, न अपने आश्रम गया, ठीक है, न मैंने हवन किया जो मैं डेली करता हूँ, न मैंने माला किया, ठीक है ना, 1 साल तक। तो अपने घर में 1 साल तक हम कोई शुभ कार्य भी नहीं कर सकते। अपने घर में कोई ऐसी घटना हो जाती है, पिताजी चले जाते हैं, माताजी चले जाते हैं, ठीक है ना, ग्रैंडफादर चले जाते हैं, तो हमारे गुरु महाराज कहते कि चिता की आग को ठंडी होने में 1 साल लगता है। अभी ये पंडित लोग तो 6 मासी वर्षी 15 दिन 20 दिन महीने के अंधेरे कर देते हैं, और घर में शादी हो तो बच्चों की शादी भी कर देते हैं। नहीं, उसमें दोष लगता है, फिर वो दोष निवारण की विधि भी करनी पड़ती है, क्योंकि अग्निदेव की साक्षी से जो आप शादी करते हैं वो शादी अग्निदेव स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन ब्राह्मण पंडित लोग कराते हैं, उनकी मर्जी है। मैंने अपनी बात की, ठीक है ना, कि मेरे पिता का देहांत हो गया तो हमारे घर में 1 साल तक कोई शुभ कार्य नहीं हुआ। ना तो हम मकान खरीदते हैं नया, ना तो हम कोई वाहन खरीदते हैं, ना तो कोई लग्जरी खरीदते हैं, समझिए, सुख सुविधा 1 साल तक। क्योंकि गुरु महाराज ने सिखाया था कि घर में देहांत होते, मेरे ग्रैंडफादर गुजर गए थे तभी उन्होंने सिखाया था मेरे को कि अपने घर में होता है तो वो चिता को ठंडी होने में, वो राख को ठंडी होने में 1 साल लगता है, ठीक है। और आप गरुड़ पुराण भी सुनेंगे तो उसमें भी आप देखेंगे कि वो जीव को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 1 साल लग जाता है। और यहाँ तो लोग अपने घर में शुभ प्रसंग है, बेटी की है, भाई के यहाँ शादी है, कोई भी है ना, चाचे के यहाँ है, तो 6 मासी वर्षी कर देते हैं। जो वर्षी 1 साल के बाद होनी वो 15 दिन 20 दिन बाद भी कर देते हैं, और संकल्प करके कर देते हैं, ब्राह्मण लोग करा भी देते हैं, और लोग शादी ब्याह जो करना है वो काम भी कर लेते हैं। लेकिन उसमें दोष रहता है, जानबूझकर करे, ज्ञान होने के बाद करे तो महादोष लगता है, और अज्ञानता में किया है तो फिर उसका भी शुद्धिकरण किसी ज्ञानी शास्त्री के पास करवाना पड़ता है। जो दंपति का शादी हुआ है उनका ही, उनके साथ पेरेंट्स को बैठ के उनका शुद्धिकरण करना ही पड़ता है। दोष है वो स्वीकार नहीं करते। पिता की आग को ठंडी होने में 1 साल लगता है, ग्रैंडफादर की आग ठंडी होने में 1 साल लगता है, और आप अग्नि प्रज्वलित करके हवन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, बच्चों की शादी करते हैं। अवधूत महाराज का ये जो सिखाया हुआ है, ठीक है ना, और किसी पंडित और शास्त्री को इसमें कुछ है तो कोई अवधूत को वो जानते हो तो उनके साथ वो इसकी चर्चा कर सकते हैं। हम तो अवधूत महाराज के शिष्य है, ठीक है ना, गजानन महाराज के शिष्य है, तो उन्होंने जो हमें सिखाया है वही रास्ते पे हम चलते हैं। और इसी तरह से जीने से ही अपने जीवन में आध्यात्मिक कवच की प्राप्ति होती है। सनातन धर्म और उसकी संस्कृति को अगर पकड़ के चलोगे तभी परमात्मा का एहसास होगा, तभी परमात्मा का कवच प्राप्त होगा। शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र, परस्पर देवो भव, सखा भाव, इनके साथ ये सोच असोच का पालन और अपनी संस्कृति का नियमों का पालन करने से आध्यात्मिक कवच प्राप्त होता है। कई लोग हमारे पास आते हैं ने, देखो नहीं संजू बाबा મારા છોકરાને શું તકલીફ છે, અમારે શું તકલીફ છે, દુઃખ જતું જ નથી, કંઈ ને કંઈ તકલીફો આવતી જ રહે છે। आदि विद्यादि उपाधि आने की वजह भी यही है। आर्थिक सामाजिक ये सब इसकी वजह भी है। और कई लोग पूछेंगे कि विधर्मी को कुछ क्यों नहीं होता है। उनका धर्म ही नहीं है। हम लोग ने सनातन धर्म में जन्म लिया है,
भगवान ने हमने कुछ सोच के ही तो सनातन धर्म में जन्म लिया है ना, नहीं तो आपको विधर्म में क्यों जन्म नहीं देते हैं? तो सनातन धर्म में आपको जन्म दिया है, तो सनातन धर्म की जो संस्कृति है, उसकी जो फिलोसॉफी है, उसकी राह पे चलना ही पड़ेगा। हम लोग अपने बच्चों को बड़ी बड़ी स्कूलों में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति का जो बेसिक होता है वो नहीं पढ़ाते। इसलिए हम लोग कहते हैं कि आप जो सोसाइटी में रहते हो, जो गांव में रहते हो, उसमें महीने में एक बार वेद उपनिषद का और किसी ज्ञानी के पास श्रवण करना चाहिए। सूतक क्या है, सोच असोच क्या है, उसका ज्ञान आपको भी प्राप्त करना चाहिए और आपके बेटों बेटियों को भी प्राप्त कराना चाहिए। हमने हिंदू में जन्म लिया है, इसलिए हम हिंदू नहीं हो जाते। हिंदू वो है जिसने हिंद महासागर के पास जो प्रदेश में उधर जन्म लिया है, वो सब हिंदू। अगर मैं न्यूजीलैंड में होता तो भारत की जो 150 करोड़ पब्लिक है वो सबको मैं हिंदू बोलता। क्यों? वो आप चाहे मुसलमान ख्रिस्ती जो भी बोलो, अपने आप को समझो, लेकिन अगर मैं न्यूजीलैंड में होता, मैं अमेरिका में होता, मैं इंग्लैंड में होता, तो उधर मेरे को कोई पूछता, तो उधर से कोई भी आता मेरे मिलने, हाँ, सनातनी आता, ख्रिस्ती आता, पारसी आता, कोई भी आता, तो मैं इसको हिंदू ही बोलता। हिंदू मतलब हिंद महासागर के पास रहने वाली संस्कृति, ठीक है ना। उसको जो ये बाहर की जो संस्कृति है वो उनको इतना नॉलेज नहीं था सनातन क्या है, ठीक है ना, तो वो लोग हिंद महासागर के हिसाब से हम सबको हिंदू बोलते थे, ठीक है। लेकिन अपना मूल धर्म क्या है? हमारा मूल धर्म है सनातन धर्म, और उसकी जो संस्कृति है उसको जब तक हम सीखेंगे नहीं, वो रास्ते पे चलेंगे नहीं, तब तक हम सनातनी बनते नहीं हैं। सनातन में जन्म दिया परमात्मा ने, वो आपका सौभाग्य है। देखो, ब्राह्मण के यहाँ भी लड़के का जन्म होता है, फिर उसका जन्म संस्कार होता है ना। तो इसी प्रकार हमको भी ये सब संस्कार को सीखना पड़ेगा, अपने जीवन में डालना पड़ेगा, ठीक है। वो संस्कार को डालने से, वो जीने से, वो रास्ते पे चलने से आध्यात्मिक क्रांति होती है और आध्यात्मिक ऊर्जा एक्टिव होती है, आपके चक्र एक्टिव होते हैं, ठीक है ना। और वही फिर आपका आध्यात्मिक कवच बन जाता है। परमात्मा की, माता जी की एक अदृश्य शक्ति फिर आपकी रक्षा करती है, क्योंकि हम सनातन को बेस को पकड़ के जब जीते हैं। अब कई लोग सोचेंगे दिन में कितनी बार स्नान करेंगे, करना पड़ता है। मेरा कम से कम दिन में 7 टाइम स्नान होता है, एटलीस्ट 7। मॉर्निंग में 4 बजे उठूँगा, स्नान करके पूजा के वस्त्र धारण करके पूजा करूँगा, ठीक है। उसके बाद हवन करते तो सब पसीने से रेपजप हो जाता है। उसके बाद स्नान करके फिर मैं आपके साथ इधर सत्संग के लिए आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। फिर चाय नाश्ता करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ। अगर सोच आया तो वो करने के बाद फिर स्नान करता हूँ। ऑफिस से आने के मेरे कपड़े अलग है, आने जाने के लिए जो कपड़े, उसका मतलब उसको अलग तरीके से रखते हैं। ऑफिस से आने के बाद भी स्नान करते हैं, फिर घर के स्वच्छ कपड़े पहन के ही खाना खाते हैं, इवन शाम को भी या दोपहर को भी। क्योंकि जो गांव की बुराई है जो हमने अपने कपड़ों के साथ लेके आई है, क्या किसी ने हमको स्पर्श किया है, किसी के यहाँ सूतक है, किसी का चाचा गुजर गया, किसी की बुआ गुजर गई है, किसी के यहाँ लड़का आया, वो सब हमको मिलने आता है ना। बिजनेस के तो सब आएंगे ही हमको मिलने। तो फिर जो भी कि कोई अपवित्र चीज़ को आपने छू लिया है, आपको मालूम नहीं है, ठीक है ना, तो घर पे आके वो वस्त्र निकाल के स्नान करके फिर खाना खाते हैं, फिर आराम करते हैं। तो कितना स्नान हो जाता है, हाँ। तो यही सनातन धर्म का बेसिक है। पहले के ज़माने में लोग बोलते हैं मत छूना, मुझे मत छूना। क्यों? क्योंकि वो स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के बैठा होता है और उसको भगवान की पूजा करने जाना होता है या कोई मंदिर जाना होता है,
आप अपने घर से भी निकलो, अगर मंदिर जाते हो तो रास्ते में किसी को छुओ मत। आप घर से मंदिर भी जाओ तो स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के जाना चाहिए। कई लोग होते हैं धोती पहन के जाते हैं, तो इसका कारण ये है क्योंकि हम जिसके दर्शन करने जाते हैं वो परम पिता परमात्मा, वो माता जी पवित्र में पवित्र हैं। तो उनके सामने हम प्योर होके पवित्र होके जाएंगे तो उनकी कृपा बनी रहेगी। हम खुद भी स्नान करके बैठे और कोई बिना स्नान के हमारे पास आए तो हम बोलते रहे भैया दूर रहना, बोलते हैं कि नहीं बोलिए? कितने दिन से स्नान भी नहीं किया, कितना गंदा है ना। तो परमात्मा के पास भी जाते हो, दर्शन करने पे जाते हो, तीर्थ स्थानों में भी जाते हो तो स्वच्छ सुघर कपड़े पहन के जाना चाहिए, स्नान करके जाना चाहिए। यात्रा करो तो ये होना चाहिए। लेकिन कई बार इतना पॉसिबल नहीं रहता, एक दिन में 2-3 बार बीच में अगर सोच का आ गया तो पवित्र जल छाट के शुद्धिकरण करके भी फिर परमात्मा की क्षमा मांग के भी दर्शन कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक समझ में ये देह शुद्धि तो हो गई, फिर मानसिक शुद्धि भी होनी चाहिए, है ना। मन से भी पवित्र होना चाहिए। तो इसीलिए गुरु महाराज ने बोला है, क्या बोला है? हाँ? मंत्र शुद्धि, मारा शुद्धि, चित्त शुद्धि, बुद्धि शुद्धि, आत्मा शुद्धि, व्यवहार शुद्धि, जीव शुद्धि। मंत्र शुद्धि, माला शुद्धि लोगों को समझ में नहीं आएगा। हम जो माला से जप करते हैं ना डेली, उस माला को भी हर दिन या तो हफ्ते में एक बार अत्तर से उसको मतलब 2 हाथों से ऐसे अत्तर लगा के माला को भी मतलब शुद्ध करना पड़ता है। तो माला के साथ जो मंत्र हम बोलते हैं उसके ऊपर अंकित हो जाते हैं, ठीक है ना। जो भी हम नाम स्मरण करते हैं वो माला के ऊपर अंकित हो जाता है। जैसे टैप रिकॉर्ड में ऊपर पहले वो ज़माने में टैप होती थी तो उसके ऊपर रिकॉर्डिंग अंकित हो जाता है। उसी तरह हर माला के दाने के ऊपर आपका मंत्र अंकित हो जाता है। तो उसको भी अत्तर से करना चाहिए। दाड़म का जो जूस है, हाथों से मचोड़ के जूस निकालने का, उसमें माला को पूरा भिगो देने का और फिर उसको साफ करके उसको इस तरह से भी माला को शुद्ध करते हैं। तो मंत्र शुद्धि, माला शुद्धि, ग्रहण के बाद ऐसे इस तरह से माला को शुद्ध करना ही पड़ता है। अब ग्रहण है, अगले महीने 7 तारीख को ही ग्रहण है, ठीक है ना। तो 7 तारीख को ग्रहण रहेगा तो ग्रहण का टाइम रात को 10 बजे से शायद 1:30 बजे के तक है और कुंभ राशि में ही है चंद्र ग्रहण, ठीक है। तो रात को 10 बजे से 1:30 बजे तक आपको माला करना चाहिए, ठीक है। माला करो तब तक जल, कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो कोई बुद्ध है, बीमार है, बुजुर्ग है, नहीं कहीं रह सकते तो खा पी सकते हैं, जो भी उनको जीने के लिए, मतलब श्वास जीने के लिए इतना खाना चाहिए। तो वहाँ तक जागरण करना चाहिए, मंत्र जपना चाहिए। और वो मंत्र जपने का ग्रहण के बाद फिर वो स्नान करके घर को भी शुद्धिकरण करके गंगा जल ये सब पानी में अत्तर डाल के शुद्ध करके फिर देवस्थान को भी पूरा साफ सफाई करके भगवान की फोटो को अत्तर ये सब लगा के, है ना, वो शुद्धिकरण करना चाहिए। रात को 1:30 बजे ग्रहण होता है तो सुबह 4-5 बजे के बाद कीजिए। लेकिन ग्रहण के बाद भी स्नान करके स्वच्छ कपड़े, वो जो ग्रहण के दौरान आपने जो पूजा के कपड़े पहने हैं उसको भी मतलब धोने के लिए डाल लेना चाहिए। हाँ, और फिर दूसरे दिन वो स्वच्छ कपड़ा पहन के आपको ये सब करना चाहिए। तो ये सब सनातन धर्म में जो हम सीखे वो आज आपके साथ शेयर किया है। कहीं सखा पूछ रहे थे आध्यात्मिक कवच कैसे होता है, तो जो भी मैंने आज आपके साथ सत्संग किया इसमें से आप जो भी ग्रहण कर सको वो परमात्मा की कृपा है। बाकी केवल हिंदू में जन्म लेने से हम हिंदू नहीं हो जाते। सनातन धर्म के बेस को इस तरह से पकड़ने से आप सनातनी होंगे, हिंदू होंगे। और हो सके तो सोसाइटी का पूरा मेंबर्स इकट्ठा होके थोड़ा सा फंड निकाल के किसी शास्त्री से वेद उपनिषद ऐसे ज्ञान प्राप्त कीजिए, सोच का ज्ञान प्राप्त कीजिए। हो सके तो आपका आज का आप हमारा संवाद आपके दोस्तों तक पहुंचाइए और उनको बताइए कि क्या होता है सनातन धर्म,
उसकी संस्कृति क्या है। कृष्णं वंदे जगत गुरु, कृष्णं वंदे जगत गुरु, हाँ कृष्णं वंदे जगत गुरु, कृष्णं वंदे जगत गुरु। श्री राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। श्री राम कृष्ण शंकर हनुमान, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान। આજે કૃષ્ણ ભગવાનનો જન્માષ્ટમી છે। રાત્રે 11:48 સુધી સાતમ હોવાથી બની શકે તો આજે જન્માષ્ટમી કરજો, બાકી જેને જેમ મોજ આવે તેમ મોજ કરજો। શક્ય હોય તો આજે આખો દિવસ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય મંત્રનો જાપ કરજો। શ્રી ગુરુદેવ દત્ત, શ્રી ગુરુદેવ દત્ત, શ્રી ગુરુદેવ દત્ત। કૃષ્ણમ વંદે જગત ગુરુ, ગુરુદેવ દત્ત।